Hello, students. So, we are reading chapter Reach for the Top from your book Beehive, Part 2. And Reach for the Top. This chapter is about the hard work and determination of two courageous ladies named Santosh Yadav and Maria Sharapova. And these stories fill our heart with the desire that nothing is impossible. And it is up to us how we realize our dream and achieve them with the pure hard work. Now, coming to part 2, Maria Sharapova, that we have already started. She reached the top position in women's tennis in August 2005 at the age of 18. At a very young age, she was very determined and ready to confront all the challenges. So, we have read how she had to move away with her father to USA, and she had to live away from her mother at this very young age of 9, and because her mother had to stay back due to visa restrictions, and how she came up with lots of hurdles over there, she has told here. She was very young, and other tennis player would wake her up at 11 p.m. and order her to tidy up the room and clean that. So instead of letting that depress me, what is Maria Sharapova saying? That instead of letting that depress me, allowing that make me sad, I became more quietly determined and mentally tough. तो ये सारी बातों का उसने अपने अपने ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, इन चीज़ों ने उसको डिप्रेस नहीं किया. Okay, instead of allowing all those things to make her depressed, she became more quietly determined and mentally tough. वो इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई, स्ट्रॉन्ग विल पावर उसमें आई, और मेंटली वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि इतनी छोटी एज में वो अकेले रहना सीख रही थी. उसने ये सारी चीज़ें सीखी, हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. I never thought of quitting. What is the meaning of quitting? To stop trying. I never thought of quitting because I knew what I wanted. Okay, she never stopped trying because she knew what she wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you more hungry and determined. So Maria Sharapova is saying when you come from nothing means her background was not that financially strong, and she also had nothing at that moment. उसको भी लाइफ में बहुत कुछ करना था, ना ही उसकी कोई बैकग्राउंड अच्छी थी. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस दे मेक यू मोर हंग्री एंड डिटरमाइंड. तो आपकी और डिज़ायर होती है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आपके लिए सक्सेस के लिए हंगर बढ़ जाती है, आप और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो. So I would have put up with much more humiliation and insults than to steadfastly pursue my dream. Steadfastly means firm in purpose. ओके, सो ये तो कुछ भी नहीं थे. वो कह रहे हैं कि अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा और ह्यूमिलेशंस और इंसल्ट्स पुटअप कर सकती थी, बियर अप कर सकती थी, टॉलरेट कर सकती थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलेशन? ह्यूमिलेशन मीन्स टू मेक समवन फील लो. ओके, तो किसी को नीचा दिखाना. ठीक है, तो जैसे उसके साथ दूसरे टेनिस प्लेयर्स का बिहेवियर था, उसको वो इंसल्टेड फील करती थी, ह्यूमिलेटेड फील करती थी, बट इन सभी चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं था, बिकॉज शी वॉज फर्म्ड इन हर पर्पस, एंड दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. और वही टफनेस, वही स्ट्रेंथ अभी तक उसमें है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द विमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैगिंग? विनिंग. ओके, तो इसी टफनेस के कारण वो 2004 में विमेन सिंगल क्राउन उसने विन करा, एंड इट मेक हर टू रीच world number 1 spot the following year. And what is the meaning of meteoric? A very sudden and fast rise. Okay, and this toughness also lead to her sudden and fast rise to the world number 1 spot the coming year. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans
For the youngest herself, there appears to be no room for sentiment. ओके तो उसकी जो जर्नी थी ये फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से लेके विमेन टेनिस के हाईएस्ट पॉइंट को टच किया था इसकी जर्नी ने, एंड इट हैज़ टच द हाइट्स ऑफ टेनिस फैंस। ठीक है, एक तरफ उसको टेनिस फैंस को उसने बहुत ज़्यादा एल्योर करा था विद हर प्लेइंग, but on the other side, for the youngster herself, there was no room for sentiments, there were no rooms for any emotions, any emotional feeling. अब उसको अपने इमोशंस नहीं देखने थे, जैसे कि वो अपनी मदर से दूर है या उसको किसी की बात फील होती थी तो उसे इन सब चीज़ों से को उसने ओवरलुक करना था. सो द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन शी asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. ओके तो जब भी उससे कुछ पूछा जाता था तो जो उसकी स्ट्रेट लुक्स होती थी या जो वो आंसर्स देते थे तो वे ये सारी बातें ये बात क्लियर करती थी कि शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, क्योंकि जब भी उससे उसके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता था तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देती थी. एंड दिस मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट. तो वो एकदम ये बात बहुत क्लियरली शो करता है कि उसको पता था कि जो भी उसने सेक्रीफाइस करा है वो वेस्ट नहीं गए हैं, देवर वर्थ इट, उनसे उनको बहुत कुछ मिला है उन सेक्रीफाइसेस से. आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट इज़ माई जॉब. तो जो भी वो करती थी बहुत मेहनत से करती थी और उसको ये पता था कि उसकी ये जॉब है. एंड दिस इज़ हर मंत्रास फॉर सक्सेस, और शायद उसकी सक्सेस का मंत्र भी यही था. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality because now she has spent many years in America also. So though she speaks with a pronounced American accent, accent means a way of speaking. तो उसको अमेरिकन एक्सेंट में वो अच्छी तरह प्रोनाउंस करती थी, अच्छी तरह से वो बोलती थी. ओके बट शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी. ओके ऑल्दो वो अपनी लैंग्वेज जब बोलती थी तो वो अमेरिकन लगती थी क्योंकि उसने इतने साल अमेरिका में रही थी, उसकी लैंग्वेज में अमेरिकन एक्सेंट था, बट शी प्राउडली पैरेड्स और रशियन नेशनलिटी. पर वो कभी भी ये बात छुपाती नहीं थी, हमेशा सबको प्राउडली बताती थी कि हर नेशनलिटी इज रशियन, शी इज अ Russian. Okay, so clearing all doubts, she says, I am Russian. It is true that the US is a big part of my life. So clearing all doubts of her fans, she would say, I am Russian. कि हाँ मैं Russian हूँ. And it is true that US is big part of my life. तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप and my blood is totally Russian and I will play the Olympics for Russia if they want me. Okay, so like any number of teenaged sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. ओके जैसे कि बहुत सारे दूसरे जो टीनेजर्स सेंसेशंस होते हैं, सेंसेशंस कौन, सेलिब्रिटीज हु आर गिवन वेरी मच अटेंशन बाय देयर फैंस. ओके तो किसी और भी टीनेजर सेंसेशन की तरह मारिया शरापोवा को अपनी हॉबीज में वो क्या क्या गिनाती है, क्या क्या लिस्ट करती है, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी उसकी लिस्ट ऑफ हॉबीज थी. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. आर्थर कॉनन डॉयल वो ज़्यादातर वो उसके जो नॉवेल्स थे वो डिटेक्टिव बेस पे होते थे और शेरलॉक होम्स उनका मेन उसके प्रोटेगनिस्ट होता था उसके बुक्स में, उसकी स्टोरीज में. तो उसको वो डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पसंद थी आर्थर कॉनन डॉयल की. एंड हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेरी रिफाइंड, ओके, या फैशनेबल. ठीक है, एक तरफ वो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स ड्रेसेस पहनती थी, अपीयर्स टू एट ऑड्स मतलब इन कन्फ्लिक्ट विद, ऑपोजिट विद, हर लव फॉर पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. अब जो कार्बोनेटेड ऑरेंज ड्रिंक्स होती हैं या चॉकलेट्स होती है पैनकेक पे स्प्रेड, ये सारे हाई कैलोरीज
फूड होते हैं। एक तरफ तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैशनेबल वो आउटफिट्स पहनती थी, तो वो मतलब अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करने में बिलीव करती थी, और दूसरी तरफ ये सारे ऐसे वाले फूड भी खाती थी जो कि दोनों चीज़ें बहुत आपस में कॉन्ट्रास्टेड थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। उसको हम किसी को पिजन होल्ड मतलब करना, उसको कैटेगराइज्ड में नहीं बांध सकते, किसी एक कैटेगरी को नहीं उसमें रख सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसकी कभी भी ना रुकने वाली डिजायर, ओके, ना रोके जाने वाली डिजायर टू सक्सीड और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती थी अपने वर्क को लेके। एंड दीज थिंग्स हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रिपिंग। तो कई लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि वो कितनी ज्यादा रिच है, कितने पैसे हैं, पैसा है उसके पास। दिस इज she has to say about her monetary gains from the tennis। तो वो अगर मॉनेटरी गेन्स या उसके फाइनेंशियल गेन्स की अगर बात करें जो कि उसने टेनिस से कमाया है पैसा, तो उसके बारे में वो क्या बोलती थी? ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, मनी इज ए ग्रेट इंस्पिरेशन। हर किसी को बहुत अच्छा लगता है अगर उसको मनी मिलता है बहुत सारा। टेनिस इज अ बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, और टेनिस सच में एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर 1 वर्ल्ड में बनना, ये सबसे अच्छी फीलिंग है। एंड दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, एंड दैट इज़ द ड्रीम कि हमेशा मैं नंबर 1 पे रहूं। एंड दैट थिंग मोटिवेट्स हर टू कीप ऑन गोइंग।